अब आते हैं मर्डर। आईपीसी 4 सिचुएशंस को मर्डर डिक्लेयर करती है, 4। If it falls in any of the 4 categories that is mentioned under section 300, only then it is murder, otherwise it is not murder. End of story. बहुत ध्यान से समझ लो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। We have 4 clauses, firstly, secondly, thirdly, fourthly. If a culpable homicide falls in any of the 4 categories, only then it is murder, otherwise it is not murder. It is culpable homicide not amounting to murder. It is any other offense, but it is not murder. The first one is culpable homicide का पहला स्टेटमेंट, एन एक्ट डन विद एन इंटेंशन टू किल। अगर आपको दिख रहा है, इफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आर विविड इनफ टू प्रूव दैट अ पर्सन हैज एक्टेड विद एन इंटेंशन टू कॉज डेथ, देन इट इज मर्डर। एंड generally this intention is very clear in the facts and circumstances. So through facts and circumstances, evidences, corroboration, it is clear that the clear intention was that the other person dies and it actually happened, then it will be murder. Straight and simple. ये तो पहला एलिमेंट है कि सामने वाले ने हरकत करी इस नियत से कि दूसरा वाला इंसान मर जाए, और वो मर गया तो उसकी हत्या की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम हत्यारे हो, तुमने हत्या कर दी है, तुम्हें मर्डर की सजा मिलेगी। दिस इज 300 फर्स्टली। अब आता है सेकेंडली। सेकेंडली क्या होता है? If it is done with an intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of a person to whom the harm is caused. Secondly का एग्जाम्पल समझो बहुत अच्छे से। I'll give you a live example. So there was this friend of ours. I was in college and all of us were going to Rishikesh. We were in a train and he had this bad habit of, being near the door in a moving train. That speed, that air, it used to give him a certain rush and he used to love it. अब वो एसी के दरवाजे से बाहर निकलकर ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। The problem was कि ट्रेन की स्पीड बहुत तेज नहीं थी, वो प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। Right now, at that moment, the train was leaving the platform. Suddenly, you don't realize when the train is leaving the platform, it is at a very normal speed. But you don't realize when it catches up. एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, आपको पता नहीं चलता। अब वो गधों की तरह यूं झांक रहा था, ऐसे उस तरफ। I don't know what he was trying to see, लेकिन वो झांक यूं ही रहा था। इस स्टोरी को कोरॉबोरेट करने वाला वो पेप्सी चिप्स का वेंडर था जो अपने सामान को इकट्ठा करके बेचने के लिए जा रहा था अंदर। वो वहीं खड़ा था, वो देख रहा था कि भैया जी यूं झांक रहे हैं। राइट नाउ दिस पर्सन इज वॉचिंग something on the platform. Suddenly the train picks up on the speed and there's a pole that he obviously doesn't see क्योंकि वो पीछे है। लग गया सर उसका यहाँ पे, ठीक है, लग गया सर उसका यहाँ पे। अब क्योंकि ही वॉज नॉट अलोन देयर, वहां पे एक वेंडर था, किसी तरह से उसने शोर मचाया, उसे गिरने नहीं दिया, खींच लिया, चेन भी खींच ली। उस लड़के को हमने हॉस्पिटल में रश किया, सब कुछ। उसे एक बहुत सीवियर इंजरी हो गई थी। यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, आई एम नॉट रियली श्योर। बिल्कुल हेरिडिटरी में जो हुआ था ना, वो एकदम बाहर झांक रही और खंबे से लग गई, मर गई। ही डिडंट डाई फॉर्चुनेटली, बट ही वॉज in coma. He was comatose for a long time. He barely survived, and when he did, the doctor said this is a permanent injury and if there is even a little bit of blow on this injury, he'll die immediately. नहीं बच पाएगा। ये बिल्कुल राउडी राठौर वाली कहानी कि सर पे चोट लगी, अगर इस चोट पे फिर से मार दिया तो आदमी मर ही जाएगा। राइट अब ये सेकेंड एलिमेंट देखो, सोचने वालों ने कितनी दूर की सोची। मर्डर सेकेंडली इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस इंजरी। Imagine, murder secondly is talking about these kinds of injury. So if you injure a person in a manner that the injury is normal, ठीक है, इंजरी नॉर्मल है, लेकिन तुमने इंजरी, अगर सोचो, चलो यहाँ पे तो इसको छोड़ देते हैं, अगर एक he didn't die fortunately, खैर, अब तुम सोचो कि हम ही में से किसी ने ये जानते हुए उसके यहाँ पे चोट मारती। We knew कि he'll die if there's an impact again on this part of the head which is permanently damaged. If any of us hit him now here, do you think we acted with any other intention but to kill him? जिन लोगों को पता है कि उसकी कमजोरी है, ये जादूगर का तोता उसकी खोपड़ी में यहाँ बैठा हुआ है और उसको यहाँ पे किसी ने मार दिया, तो तुम्हें लगता है मर्डर के अलावा कोई भी और इंटेंशन था?
टेक एनी मूवी, कोई पुरानी मूवी उठा लो जो तुमने देखी हो, साईफाई और ये मिथोलॉजिकल मूवी होती है, जादूगर्स लाइफ इज स्टोर्ड इन अ तोता, राइट? तो जादूगर, टॉक अबाउट वोल्डेमॉर्ट, व्हाट डू यू थिंक हैरी पॉटर वाज डूइंग? You know, finding out unusual stuffs like cup and a necklace. The only intention was to kill Voldemort because he knew the destruction of the Horcrux will kill him. Are you getting my point? So an act which seems very ordinary, but it is done with an intention, right? And the intention is to kill. We are the second element, or the secondly is taken into consideration a bodily injury which you know in 100% consequence or in 100% scenario will cause death is also murder. अगर तुम्हें पता है कि तुमने जो चोट, क्यों डर क्यों लग रहा है? अच्छा नहीं पढ़ा रही? कोई परेशानी हो रही है गाइस? इज देयर अ प्रॉब्लम? एम आई गोइंग टू फास्ट फॉर यू? You can tell me honestly, I won't take offense at all. I'm a human, I'm not well, I can make mistakes. Continue करो. अगर हेल्थ इशू के बारे में नहीं पता है तो मर्डर थोड़ी है यार. टपली मार दी किसी ने, उसे नहीं पता था यहाँ पे चोट लगी है, टपली से किसी की डेथ होती है. तुम सोचो अगर यहाँ पे कोई तुम्हें मार दे तो तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे. कोई नेकलेस को वो कर दे, मतलब डायरी में पियर्सिंग कर दे दांत लेके, या कप को तोड़ दे, या नेकलेस तोड़ दे, या फिर तोते की गर्दन मरोड़ दे, तो कोई सोच सकता है कि जान चली जाएगी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. Right, so obviously this is specifically contains an intention, and the intention is coupled with the knowledge. You are causing that bodily injury because you have the knowledge of the weakness. This considers the Horcruxes. ये है Horcrux का concept. तुम इसलिए नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हो एंटीक्स को क्योंकि तुम्हें एंटीक्स अच्छे नहीं लगते. तुम इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहे हो एंटीक्स को, तुम्हें पता है उनकी वजह से, उनको डिस्ट्रॉय करने से कोई मर जाएगा. यार, यू ओनली डिस्ट्रॉइंग दोज एंटीक्स बिकॉज यू नो इट विल किल समवन. So this is what the secondly considers. This is what the secondly is taking into consideration. So knowledge is primary here. The knowledge is compulsory. Knowledge of what? Knowledge of the weakness. Knowledge of the Horcruxes. You knew that the bodily injury is 100% of the scenario is going to cause death. And despite that, you caused that body injury and it caused death. Okay? This is what secondly is. Oh my God, Krishna. I'm so flattered. Energy आ गई मुझ में. मैं भूल गई. ये मेरा गला जो टॉर्चर झेल रहा है ना, वो भी अंदर से खुश हो गया तुम्हारी बात को सुन के. वो कह रहे पढ़ाओ पढ़ाओ. मैं नहीं फटूंगा. I won't collapse. You can continue teaching. राइट, ये क्लास लंबी चलने वाली है भाइयों और बहनों, तो पानी वानी लेकर बैठना है जैसे कृष्णा कह रहा था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हम थर्डली. थर्डली क्या होता है? थर्डली तुम नहीं डिसाइड करोगे. ठीक है, थर्डली कौन डिसाइड करेगा? थर्डली इज एक्चुअली कल्पेबल होमिसाइड का सेकंड एलिमेंट. तुमने उसे चोट लगा दी, उसको चोट लग गई. ठीक है, वो बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया. वहां पे डॉक्टर ने, या फिर वो चलो मर भी गया, ठीक है, वहां पे डॉक्टर ने या डेथ के बाद किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ये कह दिया कि ये आदमी चोट की वजह से मरा है. मतलब ये चोट इतनी खतरनाक थी कि ये क्या, कोई भी मर जाता. ठीक है, ये है थर्डली. थर्डली इन्वॉल्व्स द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट. थर्डली जो थर्ड एलिमेंट है वो ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट करता है. तो तुम डिसाइड नहीं करोगे कि भाई मेरी चोट से वो मर गया. नहीं,
ठीक है, अरे मैंने उसे धक्का दिया वो मर गया, तो डॉक्टर कहेगा धक्के से नहीं मरा है वो, सर पे पत्थर लग गया उसके इसलिए मर गया वो। अब वो पत्थर तुम ही ने मार दिया होता तो तुम हो जाते मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन तुमने पत्थर नहीं मारा, तुमने सिर्फ धक्का ही दिया था, वो धक्के से नहीं मरा, राइट। तो यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर आता है, डॉक्टर आता है, कहता है कि माय लॉर्ड ये चोट की वजह से मरा है, ये चोट जो इन साहब ने दी है, और ये चोट इतनी खतरनाक थी कि महिषासुर की भी डेथ हो जाती। समझ आ गया? ये होती है मर्डर का थर्ड डेफिनेशन या थर्ड कैटेगरी। सो इफ if an act is caused with an intention to cause such bodily injury that is sufficient in an ordinary course to cause death, right? Now how do we prove that the injury is sufficient in an ordinary ordinary course to cause death? How do we conclude that the injury is so intense, so dangerous that it would have killed anyone? How do we conclude that? We don't do it. A medical expert does it. So if through a medical opinion, through an expert's opinion, it is proved, it is concluded that the injury is so deadly that it would have definitely resulted into death, then the person causing that injury is not liable for anything but murder, because he was the one who caused that injury, even if he did not cause the injury with the intention to kill. भले ही उसने इंजर मर्डर के इंटेंशन से या किलिंग के इंटेंशन से नहीं किया, उसने चोट पहुंचाने के इंटेंशन से ही इंजर किया, लेकिन चोट इतनी डेडली थी, इतनी खतरनाक थी, उसे अपने अपने उसमें गुस्से में होश ही नहीं रहा कि मैं कितनी जोर से इसको मार रहा हूँ, कितना ज्यादा हिट कर रहा हूँ, और इस चीज को प्रूफ किया लेटर ऑन। डॉक्टर ने कहा भाई तुम ज्यादा एक्साइटेड हो गए, आदमी तुम्हारे मुक्कों से मर गया, तो फिर मैं ही जिम्मेदार हूं ना, मैंने ही तो मारा उसे। और ये है मर्डर की थर्ड कैटेगरी। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ऑब्वियसली हो गया, क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? ओके, अब आते हैं फोर्थली क्या होता है? पैरा के क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स यू हैव पैसेज क्वेश्चंस, इट्स अ लॉन्ग क्लास, लाइक आई सेड ये क्रैश कोर्स है, ठीक है? क्रैश कोर्स में तुम्हें फटाफट रिवीजन करना है कम टाइम में, बहुत ज्यादा तो ऑब्वियसली लंबी होगी क्लास। नहीं आया आपको समझ? प्लीज रिपीट 3. Oh my god. Okay. What I'm saying is, in a simple scenario where an injury is caused by a person. समझ आएगा अगर तुम मुझ पे ध्यान दोगे और कमेंट्स जो चल रहे हैं उन पे ध्यान नहीं दोगे, तो अब आ जाएगा समझ में, सच में, ठीक है? तो तुम बीच में जो वार्तालाप चल रही है वो बच्चे समझते हैं, वो पढ़ चुके हैं मर्डर, तुमने नहीं पढ़ा है, तुम मुझे सुनो, आ जाएगा। ओके, right? So in a situation where a person is causing a bodily injury and that injury causes another person to go to hospital, मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान को इतना मारा, इतनी चोट पहुंचाई कि दूसरा इंसान हॉस्पिटल पहुंच गया, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। अब जब ट्रायल शुरू हुआ तो वह जो डॉक्टर था जिसने उसे ट्रीट किया था उस पेशेंट को, वो कोर्ट में आके कहता है कि जो डेथ हुई है वो चोट की वजह से हुई है, सिर्फ और सिर्फ चोटों की वजह से ही डेथ हुई है। उस आदमी को अपने आप में कोई परेशानी नहीं थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, उसका कोई ऑर्गन फेलियर नहीं था, कुछ नहीं था, वो बस चोटों से मर गया, वो सिर्फ इंजरी से मर गया। इंजरी इतनी डेडली थी कि कोई भी मर जाता, इसको भी मरना ही था, इसलिए ये मर गया। अगर डॉक्टर ये बात प्रूव कर देता है, डॉक्टर एक्सपर्ट अपना ये ओपिनियन दे देता है कि डेथ उस इंजरी से हुई है, सिर्फ और सिर्फ उस इंजरी से हुई है जो अक्यूज्ड ने दी, तो वो अक्यूज्ड मर्डर के लिए लायबल है और किसी चीज के लिए नहीं। ये है थर्डली, राइट? तो यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी है। वेदर एन इंजरी इज सो डेडली सफिशिएंट इनफ टू कॉज डेथ इज समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड और कंक्लूडेड बाय अ मेडिकल एक्सपर्ट।
If he doesn't include it, then it will be something else. It will be culpable homicide not amounting to murder, or anything else, maybe even hurt or grievous hurt, but it will not be murder. Okay. If mental torture drives you to suicide, then it is abetment to suicide, and that is another section, that is section 307. नहीं, अच्छा नहीं, वो तो अटेम्प्ट टू सुइसाइड होता है 306 या 305 है, भूल गई मैं, चलो आते आते याद आ जाएगा। 307 तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, ठीक है। हाँ, now comes the fourth element. What is the fourth element? Fourth element talks about an intensely and excessively dangerous act. Dangerous act. This is fourthly, an excessively dangerous act which you cannot justify. इस एक्सेसिवली डेंजरस एक्ट को, जिसको तुमने बिना किसी जस्टिफिकेशन, बिना किसी रीजन के कर दिया, और इस एक्सेसिवली डेंजरस एक्ट की वजह से किसी की जान चली गई, चाहे वो एक इंसान है चाहे वो मल्टीपल, उन सारी की सारी किलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम किसी और चीज के लिए नहीं, बट मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। दैट इज व्हाट द फोर्थ क्लॉज सेज, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से दैट देयर इज अ पर्सन हु थ्रोज अ ग्रेनेड in the middle of a crowd. Now he does it without any justification. भीड़ के बीच में, मॉल में भीड़ चल रही है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान कपल सब है, और एक आदमी ने ग्रेनेड फेंक दिया या बॉम्ब प्लांट कर दिया, और बॉम्ब को वो कर दिया, उसने सेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर बॉम्ब फट जाता है, लोग मर जाते हैं, तो इसका क्या जस्टिफिकेशन था? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने जिस भी इंटेंशन से किया हो, तुमने किसी के दबाव में आके किया हो, तुमने किसी के प्रोवोकेशन में किया हो, तुमने किसी गलत फहमी में किया हो, बहरहाल तुमने एक बहुत ही खतरनाक हरकत की जिसकी वजह से लोग मर गए, और अब उन सारी की सारी डेथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, तुम मर्डरर हो, और ये फोर्थली भी मर्डर होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ मर्डर सबको पता ही है, मैं समझा चुकी हूँ। सबसे पहले मर्डर में डेथ कंपलसरी है, कल्पेबल होमिसाइड में भी डेथ कंपलसरी है, वरना वो अटेम्प्ट रह जाएगा, एक्ट नहीं होगा। डूइंग एन एक्ट देयर शुड बी एन इंटेंशन टू कॉज द बॉडीली इंजरी। ऑब्वियसली हमने इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ ही लिए, इसकी बात की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ?